स्टेशन हेडक्वार्टर स्टेशन हेडक्वार्टर साडा हक साडा हक साडा हक। ਜਲੰਧਰ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਰੀਬ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਬੇहद ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਮੰਗੇਗੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਦੇਖੋ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਜੇ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਛ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸੈਲਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋੜੀ, ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗਲਵਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਈ, ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਮਾਰਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਲਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਹਰੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਸੀ, ਬੈਂਡ ਵਜਾਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੈਲਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। 8-8 ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਮਈ ਦੀ ਜੂਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ। ਕਦੀ ਕੱਢਦੇ 700, ਕਦੀ ਕੱਢਦੇ 800, ਕਦੀ ਕੱਢਦੇ 900, ਕਦੀ 1500 ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ECH ਕਾਰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ID ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੁਝ ECH ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ID ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਮੈਡਮ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ रूडली गल कर दिया जी। तो सुबह उठते हैं तुम्हारा फ़ोन, शाम को सोते हैं तुम्हारा फ़ोन। आप हमारे सर को तंग मत करो, आप हमें तंग मत करो। आपके स्टेशन हेडक्वार्टर ने हमें बिल नहीं पास किए हैं, हम आपकी सैलरी नहीं डालेंगे। सीधी गल कर दे। स्टेशन हेडक्वार्टर का अकाउंटेंट साहब पाल साहब वो कहते पे आ कि तुसी मेरी कंप्लेंट कर दो, मैं हजे बिल नहीं पास किया, मैं इत्थे पिया उत्थे पिया। साडे नाल कोई सीधे मूंह गल नहीं करदा, साडे नाल कोई प्रधान नहीं खड़ा, साडे नाल कोई पक्का बंदा नहीं खड़ा। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਤਾਂ 50-50 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਰੱਖਦੇ। ਕੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਤੋਂ 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਬਿਠਾਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ 40-40 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹ। ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਪੈ ਜਾਊਗੀ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਆਹ ਤਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 30 ਜੂਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਆ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦਊਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਰਚੇ ਤਾਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਨਾ ਮਾਰਦੇ। हाँ जी, देखिए ये जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको सैलरी अप्रैल माह की कॉन्ट्रैक्टर ने पेमेंट कर दी है और मई का जो बिल है कॉन्ट्रैक्टर ने हमें 16 जून को सबमिट किया है। तो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से देरी हुई है बिल हमें सबमिट करने के लिए। तो अभी जो बिल है वो सबमिट होता है तो उसमें 15-20 दिन का टाइम लगता है प्रोसेस करने में। यहाँ से
हम भेजते हैं स्टेशन हेडक्वार्टर से CDA ऑफिस जाता है ऑडिट होने के बाद। तो इन सब में 15-20 दिन का टाइम लगता है जब पेमेंट रिलीज़ होती है, कॉन्ट्रैक्टर को रिलीज़ होती है। सर हर महीने इनको जो अपनी सैलरी अपना हक लेने के लिए ऐसी प्रोटेस्ट नहीं, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है इनको। मैं तो ये चाहता था कि हम जो इनको सैलरी है वो कैंट फंड से दे दें। कैंट फंड मतलब हमारे पास रहता है वो पैसा, तो उससे हम सैलरी इनको दे दें। लेकिन अभी PCDA ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि इसमें आप नहीं दे सकते, वो हम ही पेमेंट करेंगे, PCDA ऑफिस से ही पेमेंट होगा। हर महीने इनको 2 साल हो गए हम भी देखते आ रहे हैं जब से ठेके पे ये हुआ है। तो देखिए इसमें बहुत सारे कारण हैं। मैं कॉन्ट्रैक्टर जैसे महीना ख़त्म होते ही वो अगर हमें सबमिट कर देता है ना, तो ये प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। अब जब कॉन्ट्रैक्टर ही हमें जो बिल सबमिट करता है जिसके अगेंस्ट हमें उसको पैसे देने होते हैं, वो अगर 15-16 तारीख को अगर वो सबमिट कर रहा है, जैसे 31 मई को ख़त्म हुआ उसका महीना, तो अगर 2-3-4 तारीख तक भी कर दे तो वो जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये बिल सबमिट कर रहा है 16 तारीख को। यानी कि आपका कहना है कि जो हर महीने सैलरी अगर इनकी लेट हो रही है तो कॉन्ट्रैक्टर जो है, कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए कि बिल टाइमली सबमिट करे ना। उनको उनसे कौन बात करेगा? उनको नहीं, हम तो हमेशा कहते हैं उनको, कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं कि भैया बिल जल्दी सबमिट कर, लेकिन वो सुनते नहीं है। ये जो एम्प्लॉयज़ हैं ये कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं। आपको पता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं हैं ये कॉन्ट्रैक्टर। तो हम कॉन्ट्रैक्टर को जल्दी बिल सबमिट करना चाहिए। अभी भी जैसे इनको अप्रैल की सैलरी मिल चुकी है, मई की सैलरी नहीं मिली है, जून अभी ख़त्म हुआ नहीं है, तो 1 महीने की सैलरी अभी नहीं मिली है इनको। तो ऐसे तो कैंट फंड के पास भी पैसा नहीं रहता। अभी क्या है कि कैंट फंड अभी किसी एम्प्लॉय को इस महीने की सैलरी हम देने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग एजिटेशन और धरना करने लगे इस तरह से। अभी 1 महीने की सैलरी सिर्फ मिली नहीं है मई की, अभी जून ख़त्म नहीं हुआ है, जून चल रहा है, आज लास्ट दिन है, ठीक है। तो ये कहना कि 3 महीने की सैलरी नहीं मिल रही, अप्रैल की सैलरी इनके पास आ गई है। सैलरी के लिए बोला हर महीने 2 महीने के लिए नहीं, ठीक है, 1 महीने अभी अप्रैल की सैलरी मिल गई है, मई की इनकी बाकी है जो कि प्रोसेस में है, बिल सबमिट हो गया है। साल से ऐसा ही चलता आ रहा है, कैसे ये ठीक हुआ है? जो इनको भी राहत मिले, जो कि इतनी कोरोना काल के अंदर सरकारों की तरफ से कहा गया, क्या कहा गया है, यही इनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। पिछले भी कॉन्ट्रैक्टर में देरी होती थी, ये इस बार दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है, अभी ये नया है, इसको भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, क्या करना है। तो उसके साथ मिल बैठ करके हम करेंगे कि वो जल्दी बिल सबमिट करे। हाँ, वो सिस्टम नहीं बन रहा, अभी सिस्टम बन जाएगा तो इनकी सैलरी जल्दी आ जाएगी। हम चाहते हैं कि वो बिल जल्दी से जल्दी सबमिट करे, कि हम प्रोसेस करें बिल को। अब वो आधे महीने के बाद बिल सबमिट करेगा तो कैसे होगा? लेकिन सर बड़ा सवाल ये है कि हर महीने प्रोटेस्ट करते हैं। नहीं, हर महीने प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए कि 1 महीने की सैलरी, अभी सिर्फ मई की सैलरी नहीं मिली है, जून की सैलरी अभी मिलने का सवाल ही नहीं है। एक सवाल है, हर महीने इनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया जाता है अपनी सैलरी के लिए, जिसको लेके आवाजाही को भी फर्क पड़ता है और आने जाने लोगों को भी। अगर इस चीज़ को लेके कोई देखिए, ये हमारे भाई हैं, ये हमारा काम करते हैं, मेहनत करते हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे ये कोई तरीका नहीं है प्रोटेस्ट करने का। अगर आपको कोई शिकायत है तो हमारे पास आइए, हम अगर इनकी, मैं समझ रहा हूँ देरी हो रही है, लेकिन देरी कहाँ हो रही है वो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, उसको जल्दी करेंगे। जो सैलरी के ऊपर ही उनका घर चलता है, वो सब समझ रहे हैं, अपना मेंटेन करेंगे, जो घर में खाना ही नहीं होगा तो बच्चे के दूध वो सब मैं समझ रहा हूँ, आपकी बात सब समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात सब समझ रहा हूँ। ऐसे ही हम इतने इनसेंसिटिव नहीं हैं, हम लोग बहुत सेंसिटिव लोग हैं। इनकी सैलरी, गरीब लोग हैं, इनकी सैलरी समय पे नहीं मिले तो चूल्हा जलना मुश्किल होता है, ये हम समझ रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं ना, वो हम आपको बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर जब बिल हमें देरी से सबमिट कर रहा है तो हम उसको प्रोसेस करने में टाइम लग जाता है, 20 दिन लग जाते हैं कम से कम। तो ये कॉन्ट्रैक्टर को, इनको चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर को बोले कि वो जल्दी बिल सबमिट करे, क्योंकि ये जो है ये कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉई हैं। सर एक सवाल रहेगा कि कॉन्ट्रैक्टर को आप बोलोगे नहीं, ये बोल, ये तो मिले नहीं उनसे, ये कैसे हो सकता है कि ये जिनके एम्प्लॉई हैं उनको नहीं जानते हैं? तो ये तो इनकी थोड़ा सा इसमें ये है कि इनका जो लीडरशिप है, नहीं हम उनको बोलेंगे, वो बोलेंगे, ठीक। कहना है कि हम 7 बजे से हम बाहर रोड पे खड़े हैं जाम करके, लेकिन कोई भी अधिकारी आके हमें संतुष्ट नहीं किया, तो आप आगे बाहर हमसे बात नहीं। भीड़ से बात नहीं होती ना, उनका कोई लीडर होगा वो आके हमसे बात करें, भीड़ से तो बात नहीं हो सकती। वो कह रहे हैं हम सैलरी लेके जाएंगे, अदरवाइज नहीं करते तो यही अपने आप में
डाल के आग देखिए वो सब लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, वो मेरी बात नहीं है। ये सब ना करें और ये सब सोचें नहीं तो बेहतर होगा। ऐसे सैलरी अभी सिर्फ एक महीने की सैलरी मई की नहीं मिली है, जिसका बिल सबमिट किया जा चुका है, PCDA के पास है। वो मैं भी लिखित में नहीं दे सकता कि कब सैलरी मिल जाएगी। ये सारा काम प्रोसीजर से चलता है कि हम ट्राई करेंगे, हम तो चाहेंगे आज ही मिल जाए, समझे।